ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತಮಾಷೆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳ್ಲಾರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಾಳ್ಲಾರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಲಾರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ಎಂಪಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, MLCಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆತ್ಮಗೌರವ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಮೂತಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ CA NRC ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಇಂದ 21 ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27, 28, 20 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎದುರುಂದದೆ ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು by your presence here, because I know that it is not a Christian rally today. We have worked till yesterday to see that it is Christians who are fighting for it, because we were told that our numbers were increasing because conversion, and we told the government count the numbers or at least give us a credit of increasing the percentage somewhere more. We were told that we were forced conversions. We said there are enough laws in the country, there are enough laws in the police code in order to see that we don't need another. Only yesterday we came through the contents of the bill. The legislators did not know half an hour earlier what the bill was, and from yesterday onwards the public has got up and said that this bill is more harmful to the others than the is not by the Christians. I am humbled, as I said, to see the others, and I have joined the procession. कर्नाटक असेंबली में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और हमने वोट दिया है। इलेक्शन उन्होंने धर्म के नाम पर नहीं लड़ा। उन्होंने इलेक्शन के मौके पर ये नहीं कहा कि हम धर्म की बात करने वाले हैं। इलेक्शन के मौके पर उन्होंने संविधान की कसम देश को, अपने राज्य को चलाने की बात उन्होंने कही है। मेरा मुतालिबा ये है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर इनको शर्म है, अगर उनको संविधान पर भरोसा है, अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी तरह की नफरत न हो, तो फिर उनको चाहिए कि ये जो बिल अब असेंबली में पेश हुआ है उसे वापस ले। आप तमाम के ओर से, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की ओर से भी मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट को कि जो बिल आपने पास किया है उसे वापस लेना चाहिए। अगर आप वापस नहीं ले सकते हैं तो आप रिजाइन करना चाहिए, दोबारा वोट के लिए आना चाहिए आप। इसलिए कि आपको हमने कर्नाटक राज्य में अमन के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए, उन्नति प्रगति के लिए हमने आपको मुंतखब किया है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको असेंबली में रहने का हक नहीं है। आप दोबारा आइए, पब्लिक के बीच में आइए और पब्लिक से ये कहिए कि जब हम दोबारा बिल हो जाता है तो हम धर्म की बात करेंगे। पहली बात तो मेरी ये थी। दूसरी बात मैं आपके सामने ये जिक्र करूंगा, आप जरा सोचिए कि यहां सिर्फ एक क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया है, ये सब धर्म की बात है। फ्रंट लाइन में हो सकते हैं कि आप होंगे, लेकिन जितने भी धर्म को मानने वाले हैं वो सब लोग उनके निशाने पर हैं। मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो लोग भी असेंबली में धर्म की बात, वो जो बिल लाया है वो किसी धर्म से उनका ताल्लुक नहीं है। जितने लोग भी इसके सपोर्ट कर रहे हैं उनका किसी धर्म से भी ताल्लुक नहीं है। मैं इस मौके पर खास करके लिंगायत धर्म को मानने वाले MLA से कहूंगा जो असेंबली में हैं, अगर आप इस बिल की सपोर्ट में बात करते हैं तो आप बसवन्ना के तालीमात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं।
आपको मालूम है कि मुझे पढ़ने का मौका मिला है, बसवण्णा के जो वचन हैं उन वचनों के अंदर भी ये बात आपको साफ मिलेगी। आज से 1200 सदी में आपने देखा होगा जब लोगों ने बहुत जुल्म किया, लोगों पर, अवाम पर, दलितों पर, पिछड़े तबका पर जब जुल्म किया, बसवण्णा जी ने उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जिस धर्म को मानते हैं मान लो, लेकिन मेरा धर्म ये होगा। उन्होंने लिंगायत धर्म की बात कही और उनकी वचनों के अंदर ये सारी बातें आपको मिलेंगी। जितने एमएलए भी, मैं आपसे खास करके यहाँ हमारे मीडिया के लोग हैं, इनके माध्यम से कहूंगा, अगर असेंबली में लिंगायत धर्म के मानने वाले एमएलए अगर इस बिल को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो बसवण्णा के तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात कहने वाले होना चाहिए। एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, जरा सोचिए कि नेशनल लेवल पर एक लोग अलग बात करते हैं। भागवत जी ने क्या कहते हैं? भागवत जी कहते हैं कि घर वापसी। और कर्नाटक में आप क्या कहते हैं? घर वापसी नहीं होगी। कर्नाटक में आप कहते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बिल आप लाना चाहते हैं। तो आपकी ये जो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, नेशनल मीडिया को अलग बोलते हैं, स्टेट मीडिया को अलग बोलते हैं, तो वो ये मसूद ये बिल क्रिश्चियन लोगों को उतना ही नुकसान करने वाला है नहीं है। सभी लोग, महिलाओं को, ये जो दलित को, हमारा युवजन को, हमारा इतर लोगों को भी वो तकलीफ देने वाले हैं। वो बारे में सब बोल रहा है उधर। और आज का ये प्रतिभटन हमारा नहीं, मैं इधर एक गेस्ट के आया हूँ, तो बाकी लोग कर रहे हैं और बाकी लोग के पास हमने भी हाइक बोल के मैं इधर आया। क्यों सर, ऑब्जेक्शन क्यों है इस बिल पर आपको? हमारा ऑब्जेक्शन है क्या, वो क्रिश्चियन लोगों का मतांतर बोले तो कन्वर्शन हो रहा है बोलते हैं। हमारा नंबर इतना ज़्यादा हो गए बोलते हैं, इतना ज़्यादा हो गए तो भाई तुम्हारा सेंसस में ज़रा करेक्शन करो, कितने है हमको बोलो। सेकंड, कुछ फोर्स, कुछ एलियोरमेंट है तो देखो भाई, गांव में हमारा देश में बहुत कानून है और कानून के प्रकार हमको क्या करना है वो करो। और एक तुम्हारा एक मसूदे ला के और एक देखो, रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक मसूद करके ये रोड बंद हो गया क्योंकि बोलते हैं हम नहीं, हम अब एक्सीडेंट कैसा कंट्रोल करने को सरकार का काम है, जवाबदारी है। तो अभी आपने कहा कि क्रिमिनलाइज करना का एक काम हो रहा है, क्रिमिनलाइज कन्वर्शन कर रहा है, ये पहला है। सेकंड, क्रिमिनलाइज हमारा मैरिज भी है। क्रिमिनलाइज हम क्या देते हैं गरीब लोगों को वो भी हमारा करेंगे, किसको देना किसको नहीं देना बोल के। तो सभी एक दूसरा तरफ देख रहा है, वो अच्छा नहीं। हमारा भारत देश सब देश के अच्छा भारत देश हमारा है। हमारा संविधान क्या हमारा बाबा साहब हमने दिया है, उसमें इतना बड़ाई है। हम देखना है, हम सीखना है, पढ़ना है और सबको बोलना है कि हमारा देश महान है। सबको जीने को और जीने को हम देने को भी वो हम करेंगे। और हम क्रिश्चियन लोग एजुकेशन में हमको मालूम है कितना लोग हमारे में पढ़ते हैं, कितना हमारा एडमिशन के पास कितने लोग हमको आते हैं, हमको एडमिशन लेके आएंगे। क्यों? उनको डर नहीं है, वो इधर कन्वर्शन जाके वो क्रिश्चियन जाते हैं, उनको हम नहीं करते हैं। अभी तक मैं सरकार को बोलता हूँ, तुम्हारा सरकारी शाले में ऐसा होता है, एजुकेशन क्या होता है, बड़ा गरीब लोगों को हमको दो। मैं चैलेंज लेके हमारा दलित को, हमारा गरीब लोगों को अच्छा शिक्षण देने को, अच्छा हमारा औषध और मेडिसिन देने को, ऐसा काम हम करते हैं। हम सरकार के साथ है। हमारा प्रधानमंत्री बोला था सबके साथ सबके विश्वास, सबके विकास करेंगे, हमें भी करेंगे। वो सब बोले तो मैं भी है ना उधर। अच्छा, जो एंटी कन्वर्जन बिल कर्नाटका में कल इंट्रोड्यूस किया गया है और आज डिस्कस करने की बात हो रही है, उसके अंतर्गत अब हम लोग देख रहे हैं 2 नए प्रोविजन ऐड किए हैं एल्यूरमेंट की डेफिनेशन में। पोर्ट्रेइंग अ रिलीजन इन फैशन विच इज़ डेट्रीमेंटल टू अनदर रिलीजन एंड ग्लोरीफाइंग वन रिलीजन। इतने ब्रॉड क्लॉज लॉ में इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं कल को बोलूँ कि हिंदुइज़्म सबसे अच्छा रिलीजन है तो, और सब रिलीजन की शुरुआत हिंदुइज़्म से होती है, तो इस लॉ के हिसाब से वो भी
ग्लोरीफाइंग हिंदुइज्म रिलीजन है, और वो भी फोर्सेबल कन्वर्जन के अंदर क्राइम होगा। और जो फोर्सेबल कन्वर्जन का प्रोहिबिशन है उसकी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की दे रहे हैं। इतने ब्रॉड प्रोविजन के लिए जिसमें बेल भी नहीं मिलेगी, उसमें ये साफ तरह से पता चल रहा है जो ये मुस्लिम्स, दलित्स, क्रिश्चियंस, औरतें हैं, हम लोगों पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक है हमारी राइट टू डिग्निटी पे, हमारी राइट टू चूज़ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें साफ तरह से बोला है कि राइट टू चूज़ वंस रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ राइट, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वो सरकार इस बिल के थ्रू हमसे लेने की कोशिश कर रही है। ये उनका हल्ला बोल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो इसीलिए हम आज इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो एंटी कन्वर्शन बिल है इससे सेम एज लव जिहाद? ये बिल्कुल वही है। यूपी में इसको लव जिहाद का नाम से इन्होंने पिच किया था पॉलिटिकली, यहाँ पे इसको ये एंटी कन्वर्जन के नाम से पिच कर रहे हैं। पर इस बिल में भी वही आइडेंटिकल प्रोविजन है जो यूपी में है, जो बोलता है मैरिज फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्वर्जन और कन्वर्जन फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज इज सोली प्रोहिबिटेड एंड मेक्स द मैरिज नल एंड वॉइड। सो वही प्रोविजन है, बस इसको समझा ऐसा जा रहा है कि ये एंटी कन्वर्जन बिल है, लव जिहाद का एंगल दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आएगा तो ब्रॉडर सॉलिडारिटी बनेगी। इसको अभी तक सिर्फ एक क्रिश्चियन इशू बनाया जा रहा है, पर असल में ये एक क्रिश्चियन इशू, मुसलमान इशू और ये एक हिंदू वुमन इशू और ये सारे दलितों का इशू है। बिकॉज इस पर कन्वर्जन करने के बाद जो इम्प्लीकेशंस होंगे दलित्स पे इन टर्म्स ऑफ द अफर्मेटिव राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो भी बहुत सीरियस है। तो ये एक तरह से कोशिश है कि सब ग्रुप्स को एलिनेट करने की, और हमारी कोशिश आज इस जॉइंट प्रोटेस्ट में ये है कि सबको एकजुट करके एक आवाज़ में बोलने की कि ये असॉल्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हम नहीं झेलते। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो? बिल वापस नहीं लिया गया तो एक तो हमारे ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा एक ब्रॉडर कैंपेन रहेगा कि ये बिल वापस लिया जाए, पहला। दूसरा, जो भी कोई लीगल रिकोर्सेज हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे, और जैसा हम जानते हैं यूपी में जो बिल है, वो जो लॉ बन चुका था उसके बाद वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ है। गुजरात में मैरिज के क्लॉज पे स्टे है, और हमारी सरकार इतनी ज़्यादा अक्लमंद है कि वही सेम क्लॉज ला के कर्नाटका में इंट्रोड्यूस करी जो गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ है। तो ऑफकोर्स लीगल रिकोर्स लिया जाएगा। हाईकोर्ट ऑफकोर्स हाईकोर्ट की बात मानेगी, सरकार की मनमर्जी से नहीं चलेगी, तो हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मैम, क्या लगता है आपको, क्या गवर्नमेंट दूसरे जो उनके जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए नए चीज़ ला रहे हैं? बिल्कुल, ये ऐसे काले कानून सिर्फ इसीलिए लाए जाते हैं जब मुद्दे बदलने होते हैं, जब पॉलिटिकल मुद्दे बनाने होते हैं। असल में कोई मुद्दा नहीं है, ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, और बाकी लोग भी सब ये फोर्स कन्वर्जन कह रहे हैं, सब जानते हैं। सेंसस जानती है, सेंसस की पॉपुलेशन डेटा देखोगे तो आप कंसिस्टेंटली क्रिश्चियन पॉपुलेशन परसेंटेज में डिक्रीज कर रही है। तो कहाँ है फोर्स मास कन्वर्जन? कहीं नहीं है। ये बस इनका ख्याली पुलाव है जो ये लोगों पर थोप रहे हैं, और उसको एक इशू बना के उसको लोगों को एलिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंड में हमारी फ्रेटर्निटी और हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं।